Good morning student. I hope you all are doing well, and today I am going to discuss with you question number first from exercise 12.2 class 9th. Now the question is a park in the shape of a quadrilateral. You have given a park. This is the figure of the park, and ABCD has angle C is 90 degrees. See this figure, the angle C is 90 degree and AB is 9. AB is 9 meter. BC, this one BC is 12 meter, CD is 5 meter and AD is 8 meter. You have given all four sides of this quadrilateral. Now you have to find how much area does it occupy. Simply means that you just find out the area of this quadrilateral. Okay, so how can we find it? Here are 1 and 2. There are two figures. We can easily see the quadrilateral made by two triangles. One is BCD and other is BAD. First of all, we have to find the area of this figure and then this, and the last we add the area of both figure and we get the answer. Okay, so let's start. First one, let's join BD. I have already joined this, so write it. Let's join BD. Okay, make this in dotted form. Then this figure is means this triangle is right angle triangle, so we can use the basic formula like 1/2 base into height. Okay, so in triangle BCD applying पाइथागोरस फॉर्म का यूज करेंगे भाई, है ना. देन वी नो दैट पाइथागोरस थ्योरम मीन्स BD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, DC स्क्वायर प्लस BC square, and we have to find the measurement or value of this side, means this diagonal BD. We can say it hypotenuse, perpendicular base. Okay, so BD is equal to under root DC square plus BC square, that is 12. DC is 5 square plus 12 square under root 5 5 is 25 plus 12 144, that is equal to 169. So BD is equal to 13. BD is equal to 13 square under root, cancel out root by square, then 30 मीटर. ओके, सो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, हाइपोटेन्यूज आ गया है. और आप ये कह सकते हो कि जो ये ट्रायंगल है इसका एरिया निकालने के लिए मुझे BD चाहिए था, सो इस ट्रायंगल की हेल्प से हमारे पास BD आ गया है ना. सो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, पहले हम इसका एरिया निकालेंगे. एरिया ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी है, BCD. क्या हो जाएगा भाई, 1/2 बेस क्या है BC इंटू CD, परपेंडिकुलर बेस इंटू हाइट, परपेंडिकुलर इज योर हाइट, सो 1/2 इंटू 12 इंटू 5, that means 2 1 2 6. Area of this figure is 3 meter square. Now you can write it equation first. Then in triangle ADB क्या हो जाएगा भाई. अब देखो ये मेरे पास आई है 13 मीटर. अभी देखो ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट, दैट मीन्स ये कैसी ट्रायंगल हो गई आपके पास, स्केलन. और आपको पता है स्केलन जो हमारे पास ट्रायंगल होती है उसका एरिया किसकी हेल्प से निकालेंगे हम, बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला. ओके, सो ADB area of
ADB by using Heron's formula. क्या होता है भाई? S into S minus A, S minus B and S minus C. ABC are the side of this triangle. Triangle means ADB. Okay. So further solve करेंगे तो क्या आ जाएगा? First we have to find the value of S. S is semi perimeter. S is equal to semi perimeter. Perimeter क्या होता है? What is perimeter? Perimeter is the sum of all three sides or sum of all sides. Okay. So S is equal to 9 plus 8 plus 13 divided by 2. Semi means half. Semi means half. Then it became 8 plus 9, 17, 0 and 3. When you do the half of this, 15 meter you will get. Okay. Then the next is area. Put all the values in this formula. S is 15, then 15 minus A. A is 9, then 15 minus B, that is 8, then 15 minus 3, that is 13. Okay. Then further we solve it. 15 minus 9, 6, 15 minus 8, 7, 15 minus 13 is 2 मीटर स्क्वायर. ओके. इसके फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाए? 3 5 ज़ा 15, 2 3 ज़ा 6. सो क्या आ जाएगा आपके पास? 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2. ये आपके पास आएगा. दैट मीन्स जब आप इसको सोल्व करते हो तो आपके पास क्या आएगा? 3 का पेयर बन रहा है. ठीक है, हम 3 निकाल लेते हैं. 2 का पेयर बन रहा है. देन टेक 2 आउट एज कॉमन. स्क्वायर बनेगा तभी तो रूट कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा, है ना. ये तो मैं आपको अपनी हर वीडियो में क्लियर कर ही देती हूँ. देन आपके पास क्या रहा भाई? ना तो इसका पेयर है ना आपके पास 7 का पेयर है. दैट मीन्स 5 7 जा 35 मीटर स्क्वायर. दैट मीन्स 6√35 मीटर स्क्वायर. ठीक है. अब आपको क्या करना पड़ेगा? इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? डेसिमल में. रूट की वैल्यू आपको पता है किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, तो इसको डेसिमल की फॉर्म में लेके आएंगे. जब आप इसको डेसिमल की फॉर्म में लेके आते हो तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 5.916 मीटर स्क्वायर. देन मल्टीप्लाई इट 35.496 मीटर स्क्वायर. स्क्वायर रूट पता है आपको कैसे निकालते हैं? इस वे में हम स्क्वायर रूट निकालते हैं. यहाँ से करेंगे 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा ज़्यादा, हाँ 5 5 ज़ा 5 6 ज़ा 30, 5 5 ज़ा 5 7 ज़ा, हाँ. देखो एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी. हम इस तरह से नहीं ले सकते. हम जो भी यहाँ फिगर लेंगे हमें उसी का स्क्वायर यहाँ पे करना है. मीन्स अगर आप यहाँ पे 5 ले रहे हो तो आप 5 टाइम ही ले जाओगे. अगर यहाँ पे आप 6 ले रहे हो तो 6 टाइम लेके जाओगे. अगर यहाँ पे 7 ले रहे हो तो 7 टाइम ही जाओगा. मीन्स स्क्वायर निकाल रहे हैं तो स्क्वायर ही होना चाहिए. ओके. तो यहाँ पे अगर मैं 6 6 ज़ा करूँगी तो 36 ज़्यादा हो जाएगा. इट मीन्स क्या आएगा? 5 5 ज़ा 35, सॉरी 25. क्या निकल रहा मुझसे पता नहीं. 5 5 ज़ा 25. क्या भाई? 5 माइनस 5 0, 3 माइनस 2 1. अब यहाँ पे जो होता है ना बेटा उसका हम क्या करते हैं? डबल करते हैं. 5 2 ज़ा 10. इट मीन्स क्या आ गया मेरे पास? 10. अभी यहाँ पे क्या प्रोसेस होता है? यहाँ पे प्रोसेस होता है जो भी नंबर आप इसके राइट में पुट करते हो उसी नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई करते हो. ठीक है. अगर मैं यहाँ पे 9 पुट करूँगी तो मुझे 9 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अगर यहाँ पे मैं 1 पुट करूँगी तो 1, 2 करूँगी तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो यहाँ पे अगर मैं 2 से करती हूँ तो 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 2 2 1 ज़ा. और यहाँ पे जो फिगर होती है उसका हमें डबल लेके आना पड़ता है. बात समझ में आ रही है? सो यहाँ पे हम क्या करेंगे?
डेसिमल पुट करेंगे, डेसिमल पुट करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, और डेसिमल पुट करेंगे तो 1 0 नहीं लोगे आप, क्योंकि यहाँ तो ये डेफिनेटली सी बात है 10 तो है ही, अगर आप 1 से भी मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ से ज़्यादा हो जाएगा, दैट मीन्स आप डेसिमल लगाते हो तो यहाँ पे आप 2 0 पुट करोगे, क्योंकि स्क्वायर की बात हो रही है तो सब कुछ पेयर में आएगा, सब कुछ पेयर में रहेगा, कुछ भी आप विदाउट पेयर नहीं लिख सकते यहाँ पे। सो 1000 बन गया, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 9 से करूँगी, 1 पे तो बहुत कम हो जाएगा, 9 से अगर मैं कर रही हूँ तो क्या हो जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई करें, 9 9 जा 81, 9 1 जा 9, आसपास जा रहा है 981, मीन्स 10 - 1 9, 9 - 8 कितना हो जाएगा 1, देन अगेन 9 - 9 0, आपके पास ये आ गया। अगेन आप जब यहाँ पे 0 पुट करोगे तो पेयर में ही लोगे, है ना, एक बार डेसिमल पुट करने के बाद जो नंबर ऑफ जीरो है वो तो हम पुट करते ही हैं, मतलब एक बार 1 करते हैं फिर 1 करते हैं अगर हम सिंपली डिवाइड कर रहे होते हैं, लेकिन स्क्वायर की फॉर्म जब हम कर रहे हो तो 2 का मतलब यहाँ पे एक पेयर लेंगे, और अगर आप क्यूब की बात कर रहे हो तो आप यहाँ पे 3 0 लेते हो, है ना। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, अगेन जब आप यहाँ पे सोल्व करोगे तो आपके पास इस नंबर का क्या उतरेगा यहाँ पे जब आप लेके आओगे, सो नोट डाउन क्या करोगे, इसका डबल, मीन्स 2 9 जा 18, 2 5 जा 10 और 1 11, ठीक है। इस वे में यहाँ पे आपने 2 का पेयर किया, अब यहाँ पे आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, किसके आसपास, 1900 के आसपास जाना चाहिए, तो ये ऑलरेडी क्या है आपके पास 118, अगर मैं यहाँ पे 1 भी पुट कर देती हूँ तो ये क्या बन गया 1181, मीन्स बिल्कुल आसपास जा रहा है, तो आप डायरेक्ट किस पे ले जाओगे 1 जा पे, मीन्स इसी वे में आपको फर्दर सोल्व करते जाना है, ठीक है। आप 2 डेसिमल तक जाना चाहते हो 2 डेसिमल तक, 3 डेसिमल तक जाना चाहते हो 3 डेसिमल तक, 2 तक इनफ होता है, ठीक है। तो मर्जी है इस पैटर्न में करना है, ये मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। सो बड़ी बात नहीं है। अब क्या करना है, हमारे पास जो एरिया आया है इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेती हूँ, एंड आपको तो क्वाड्रिलेटरल का फाइंड करना है ना एरिया, सो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय इक्वेशन फर्स्ट बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, और यू कैन राइट और by adding area of two triangles, ट्राइंगल कौन सी हो गई आपकी, फर्स्ट वन इज BCD एंड सेकेंड वन इज एरिया ऑफ ADB। आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई, ऐड करेंगे तो फर्स्ट वन आपके पास क्या था 30 मीटर स्क्वायर था, 30 प्लस 35.496 जो हमने सेकंड वाला यहाँ पे फाइंड आउट किया था, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 65.496 मीटर स्क्वायर। ओके, सो इस वे में आपको फाइंड आउट करना था, क्वेश्चन लेंथी नहीं था ना प्रोसेस था, बस आपको स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए, ठीक है। सो स्पेशल मैंने स्क्वायर रूट की एक वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा मैशअप लग रहा है, लेकिन पैटर्न यही होता है हर एक में, जो भी यहाँ नंबर होता है उसका सबसे पहले तो आपको स्क्वायर में बात करनी है, पेयर में करनी है, तो अगर 5 से करोगे तो 5 जा पे जाओगे, 6 से कर रहे हो तो 6 जा पे जाओगे, देन 5 5 जा 25 हो गया था, जो भी यहाँ नंबर होता है नेक्स्ट टाइम उसका क्या होता है आपका डबल, ठीक है। और जो भी नंबर उसके राइट में आप पुट कर रहे हो उसी के साथ आपको मल्टीप्लाई करना होता है, इसी वे में आपका प्रोसेस चलता है। स्क्वायर रूट को ज़्यादा समझने के लिए आप स्क्वायर रूट की जो वीडियो मैंने बनाई है उसको देख सकते हैं। और इस क्वेश्चन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।